evening to all. Good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello everybody, join first. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So, Dhanashree, okay, good evening, yes sir. So today we'll see the remaining points from your nervous system, and we'll try to complete this chapter today itself, because we have taken three sessions for this. So today we have already started with the nervous system. We have seen the nervous system. What do you mean by nervous system? Class parts of your brain. We have seen the neuron, parts of neuron. We have seen the neuronal cells. Then we have also seen the blood-brain barrier. We have seen the different cells are present in the neuron, neuralgia, right? Nerve cell. We have seen the how there is a generation of action potential, how neuronal excitation is there. Okay, we have also seen how there is a neuronal excitation, how nerve impulse generation, how there is a conduction of nerve impulse. Now I will start from this slide. Now you know that what are the functions of your nervous system. What are the functions of your nervous system? We have already seen a lot of things. Basically, your nervous system detects the changes in the internal environment as well as external environment and responds to that changes in a different way. Then nervous system is responsible for the feeling of sensation. Then it will initiate the responsible changes. It will organize and store the information. Now we have seen brain. Now second part is nothing but the spinal cord. Second part is nothing but the spinal cord. What are the functions of spinal cord? Spinal cord का क्या function है? So brain and spinal cord comes under the CNS. Central nervous system जो होता है आपका, उसमें brain and spinal cord आता है. So what are the functions of spinal cord in short? So it will initiate the impulse. It will initiate impulse, transmit the impulse to brain, and from brain to organ. So it will translate impulse to and from the brain. Then responsible for the reflex action or spinal reflex. So spinal cord कहाँ पे होता है? Spinal cord is located in the vertebral column. In a vertebral column, spinal cord is located in the vertebral column, and it will extend from foramen magnum. Foramen magnum क्या होता है? It is a foramen magnum is nothing but a hole in the skull. आपका जो neck होता है, skull के नीचे जो extension होता है, that is a foramen magnum. So through the foramen magnum, your vertebral column, through a vertebral column to a foramen magnum, vertebral column के अंदर spinal cord होता है. So spinal cord will extend from brain via foramen magnum to your vertebral column, and it will extend up to the
lumbar vertebra, that is the first and second lumbar vertebra. Now cross section, if you see the cross section of your spinal cord, you will get a H-shaped structure which is made from a gray matter. Gray matter में क्या होता है, different cell bodies of motor neuron. So collection of cell body in a motor neuron, that is gray matter. Gray matter is present in the brain, in the central part, but it is present in the peripheral part of your spinal cord. Spinal cord में gray matter periphery में होता है और white matter center में होता है, but brain में white matter peripheral होता है and gray matter center में होता है, right? So H-shaped gray matter consisting of a collection of neurons, cell bodies of neurons, then interneurons. Then you have external white matter, okay? External white matter which is a myelinated axon and dendrites containing neuron and interneurons. Then what is the function? Ascending tract carry the sensory impulse to the brain, which is known as the ascending tract. Means collection of neuron in a spinal cord which carries the impulse from body to brain, known as the ascending tract. जो impulse body से लेके brain तक carry करते हैं, जो nerves, जो nervous bundle, nerve fiber bundle, it is known as the ascending tract. Descending tract means what? Descending tract of your spinal cord means the bundle of nerve which carries the motor impulse from brain to the body part. Now in the central canal of spinal cord there is a CSF. Central canal जो होता है, central canal, उसमें क्या है, CSF है, and is continuous with the ventricles of brain. मतलब ब्रेन की वेंट्रिकल से पूरा स्पाइनल कॉर्ड में क्या रहेगा, एक सेंट्रल कैनल रहेगा, उसमें आपका CSF होता है, राइट. नाउ ब्रेन, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रेन इज अराउंड 1.4 kg and that lies in the cranial cavity. आपकी खोपड़ी में क्या होता है, ब्रेन होता है, ओके. नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके, द डायनसेफेलॉन, ओके, है ना, प्रोसेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, ओके, pons, medulla oblongata, cerebellum, okay, these are the different parts of brain, okay, we have seen. Cerebrum is the largest part of your brain. Cerebrum जो होता है, that is the largest part of your brain and it is divided into hemisphere. Hemisphere मतलब क्या, half circle like moon, hemisphere. So there are two hemisphere and they are connected via corpus callosum, right? They are connected via corpus callosum. The cerebrum is divided into 5 lobes depending on the position. So frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 5 लोब होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड देयर आर डिफरेंट लोब. जैसे है ना, this one is known as a frontal lobe, this one is known as a frontal lobe, this one is known as a, है ना, next one is known as a parietal lobe. You can see over here, this one is known as a frontal lobe, this one is known as a parietal lobe, this one is known as a occipital lobe, and this one is known as a temporal lobe. तो सेरेब्रम जो है वो 5 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, जो आपका है फ्रंटल लोब, parietal lobe और temporal lobe and occipital lobe, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ योर हेड, ठीक है. तो आपका जो माथा है, आपका जो आप जहाँ पे टीका लगाते हो वो फ्रंटल लोब आता है. उसके बाद में जो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज अ parietal लोब, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, और पीछे वाला पार्ट और parietal लोब इसके बीच में जो ठोटी के ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं अपन टेम्पोरल लोब, ओके. नाउ सेरेब्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर intellectual activities, then speech, then motor activities, learning, memory, etc., right. So area of cerebrum, functional areas of cerebrum. The functional areas of cerebrum, they are divided in a different, like motor area,
प्राइमरी मोटर एरिया है ना, लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया। तो मोटर एक्टिविटीज के लिए ये मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे दिखाएं। देन आफ्टर दैट सेंसरी है ना, सोमेटो सेंसरी एरिया, तो सोमेटिक नर्व एंड sensor, sense and somatic nerve, so that area. Then speech area, so known as a sensory speech area, known as a Wernicke's area, Wernicke's area, sensory speech area. Then motor speech area, मतलब जो आप सोच के बोल रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोच के, तो that is a motor speech area and that is known as a Broca's area. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So okay, motor speech area or Broca's area is located in the dash lobe of brain. So it is present in the फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन. फ्रंटल लोब में मोटर एरिया और ब्रोकास एरिया है ना, और जो आपका सेंसरी स्पीच एरिया उसको बोलते हैं वर्निके एरिया, दैट इज प्रेजेंट इन द ओके, दैट इज प्रेजेंट इन द पैराइटल लोब. सो दिस इज प्रेजेंट इन द पैराइटल लोब. तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, पर्टिकुलर सेल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन. तो मोटर फंक्शन वहाँ पे प्रोसेस किए जाएंगे है ना, लाइक दैट. तो फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंक्लूड्स मोटर एरिया, मोटर स्पीच एरिया और ब्रोकास एरिया. In primary motor area, sensory area, right? Sensory area of cerebral cortex includes somatosensory area, auditory area. मतलब जो स्पीच है, जो हियरिंग है, जो साइट है, वो अलग अलग एरिया में प्रोसेस होता है. olfactory एरिया और स्मेल. ओके, देन टेस्ट एरिया. नेक्स्ट पार्ट आता है इन द ब्रेन यू विल हैव हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस कंसिस्टिंग ए पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस में ही क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. हाइपोथैलेमस कंटेनिंग ए कंसिस्टिंग ए पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इंक्लूड्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ एपेटाइट, देन टेस्ट, स्टेट, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस, इमोशनल रिएक्शंस, सेक्सुअल बिहेवियर, स्लीपिंग, वॉकिंग साइकिल. मतलब क्या, यू कैन से इट इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक. So most of the activities of your body is controlled by hypothalamus. You have temperature regulating center in the hypothalamus. So your emotion pattern is be decided by the hypothalamus. Appetite जो है आपका, regulation of appetite, that is also how much you have to eat, that will be decided by hypothalamus. Right? We will see one by one later on also. Now there are different vital centers which are present in the medulla oblongata. जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर है ना, मेटिंग सेंटर, कपिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, स्वॉलोइंग सेंटर. जो कप होता है आपको वो कहाँ से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा. कपिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, सो इट विल कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, इट विल कंट्रोल योर रेस्पिरेशन रेट. सो दैट इज नथिंग बट द मेडुला ऑब्लोंगेटा. रिफ्लेक्स सेंटर इज देयर, स्नीजिंग, swallowing, cupping. So that meeting, that action is okay, that centers are there in a medulla oblongata. Medulla oblongata में centers होते हैं, vital centers. You can see the parts of brain and their description or their function. तो पहला पार्ट आपको जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो पहला पार्ट सेरेब्रम होता है, बट यहाँ पे मैंने वेंट्रिकल्स. व्हाट इज द वेंट्रिकल्स एंड व्हाट आर द फंक्शन. देयर आर 4 वेंट्रिकल्स. कितने होते हैं 4 वेंट्रिकल्स? 2 lateral ventricles, then 3rd ventricle and 4th ventricle. So what is the role in the ventricles? There is a network of capillaries known as a choroid plexus. इसके ऊपर GPAT 2018 में क्वेश्चन आया. choroid plexus, network of capillary present in the ventricles which will produce a CSF, known as a choroid plexus, and this was a question in 18. It will produce a CSF. Next part आपका medulla. What is the role of medulla oblongata? So regulation of vital function like heart rate, breathing, reflexes, coughing, sneezing, swelling, है ना, then है ना, vomiting. So that is present in the medulla. So temperature regulation also. So that is done in the medulla oblongata, right? In pons varolai, in the pons, so it has a respiratory center. Pons में. In midbrain, in the midbrain, it is a center for reflexes like a, है ना, आपका auditory reflex होता है ना, या फिर इक्विलिब्रियम, मतलब आपका पोस्चर जो है, दैट इज कंट्रोल बाय दिस मिडब्रेन. देन cerebellum is also known as a हिंड ब्रेन बोलते हैं इसको, और स्मॉल ब्रेन. तो इट विल रेगुलेट द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज. आप जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माउस मेरे हाथ में,
बोल रहा हो हाथ है ना, एक्शंस कर रहा हो जो है आपका, दैट एक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एक्शन. तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, मसल टोन है ना, स्टॉपिंग मूवमेंट, इक्विलिब्रियम मूवमेंट, सेंसेशन लाइक टेक्सचर एंड वेट. आपके हाथ में वेट कितना है ना, आप जैसे जैसे वेट उठाते हो आपको समझ में आता है यार ये 1 किलो है ना, एक्सपीरियंस है. दैट मेमोरी, दैट इंटेलेक्ट इज प्रेजेंट इन द सेरेब्रम. तो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द बैलेंसिंग. जो गेट होता है आपका, जो आपका पोस्चर होता है, आप ना जैसे खड़े हो, आप स्ट्रेट खड़े हो, पोस्चर है, दैट इज मेंटेन्ड बाय सेरेब्रम. सो इट इज रेगुलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है ना. इट इज रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, मसल टोन, स्टॉपिंग मूवमेंट एंड इक्विलिब्रियम मूवमेंट. इक्विलिब्रियम मूवमेंट मीन इज पोस्चर ना. देन सेंसेशन, सेंसेस लाइक टेक्सचर है ना. आपको देखो, अगर आपको स्मूथ सरफेस है तो आपको स्मूथ दिखेगा, अगर खुरदुरा है तो खुरदुरा है, लेकिन वो सेंसेस कहाँ पे होता है, सेरेबेलम होता है. सेरेबेलम इज अ ना स्मॉल ब्रेन. देन आफ्टर दैट देयर इज अ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, व्हाट आर द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? सो हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस अ एंटी डायरेटिक हार्मोन. क्या भाई? एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच. हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच. उसके नाम में एंटी डायूरेटिक मतलब ये क्या, इट विल रेगुलेट द सोडियम एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी. देन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? इट इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल, contraction of your breast muscle, right? And also produces the releasing factors. तो hypothalamus का रोल होता है, it will also produces the releasing factor और regulation factors for anterior pituitary. जो anterior pituitary के hormones है, that will be controlled by hypothalamus. Okay? Again in the hypothalamus, temperature regulation center is there, food intake, integration of autonomic nervous system and function. ANS का इंटीग्रेशन कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है. तो अगेन हाइपोथैलेमस इज कैन बी कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. तो आपका स्लीपिंग अवेकिंग पैटर्न जो है, दैट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस. रिस्पॉन्सेस टू द इमोशनल सिचुएशन, आपका जो इमोशनल सिचुएशन है वो रिस्पॉन्स कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से. देन थैलेमस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, थैलेमस पार्ट इन शॉर्ट. तो ग्रुपिंग ऑफ सेंसरी इम्पल्स बिफोर रिलाइंग टू द सेरेब्रम. मतलब क्या, आपके जो भी इनपुट्स आ रहे हैं बॉडी में से, सेंसेस आ रहे हैं, सेंसरी सिंपल्स, सेंसरी इम्पल्सेस, स्टिमुलस आ रहे हैं, उसको ग्रुप करना और उसको रिलाई करना, रिले उसमें ट्रांसमिट करना. इट विल रिलाई टू द सेरेबेलम. अगेन अवेयरनेस, सप्रेशन ऑफ अनइम्पोर्टेंट इम्पल्स, जो इंपॉर्टेंट इम्पल्स नहीं उसको सप्रेस कर देगा थैलेमस. दिस इज द रोल ऑफ थैलेमस. देन नेक्स्ट पार्ट इज मेन पार्ट इज सेरेब्रम. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज सेरेब्रम. So cerebrum is having two hemisphere, दो हेमिस्फीयर होता है, connected by corpus callosum. corpus callosum ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. Two hemispheres of your cerebrum, they are connected by corpus callosum. It is a white matter area. white matter area होता है, which permit the communication between two hemispheres. Outer gray matter is there है ना, that is known as a collection of cell body. तो आपका cerebrum जो है, outer matter is a gray matter एंड इनर मैटर इज व्हाइट मैटर. और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका अपोजिट होता है, आउटर पेरिफेरमी व्हाइट मैटर होता है एंड इनर मैटर जो होता है उसमें ग्रे मैटर होता है. मैंने वहाँ प्रीवियस स्लाइड में अपोजिट बोला था है ना. सो रिमेंबर, इन द सेरेब्रम आउटर मैटर इज ग्रे मैटर एंड इनर मैटर इज व्हाइट मैटर. ग्रे मैटर मीन्स बट कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन. व्हाइट मैटर मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स. तो जैसे ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर है ना, सुपरफिशियली सेरेब्रम में आउटर ग्रे होता है, इनर व्हाइट होता है. तो उसके अपोजिट है कि स्पाइनल कॉर्ड में पेरीफेरी में व्हाइट मैटर होता है एंड सेंट्रल में ग्रे मैटर होता है. दैट्स व्हाई स्पाइनल कॉर्ड, इफ यू टेक अ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट विल लाइक लुक लाइक ए एच. एच क्यों? क्योंकि देयर आर टू हॉर्न्स विच आर हैविंग ग्रे मैटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ डिफरेंट एरियाज ऑफ योर सेरेब्रम, डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरेब्रम. सेरेब्रम का कितने लोब्स है देखो यहाँ पे. तो फर्स्ट वन इज द फ्रंटल लोब. यू हैव डिफरेंट लोब्स इन द सेरेब्रम. फर्स्ट वन इज द फ्रंटल लोब एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रंटल लोब? सो फ्रंटल लोब इज रिलेटेड विद द मोटर एरियाज. जो आपका मोटर एरियाज है,
so voluntary. So related with the motor areas, initiate the voluntary movements. So frontal lobe will initiate the voluntary movements. Also as a promoter areas regulate the sequence of movement regulate करने के लिए. Then sequence of movement of learn skill, मतलब जो अपनी स्किल एक्वायर किया है वो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट करने के लिए फटाफट आपका मोटर मूवमेंट का वो एरिया कौन डिसाइड करता है? फ्रंटल लोब ऑफ योर सेरेब्रम, है ना. Prefrontal area is also there, which is related with the social behavior. Then in the frontal lobe you have Broca's motor speech area. Broca's motor speech area. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रोकास एरिया कहाँ पे होता है? ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया मतलब जो अब मैं सोच के जो बोल रहा हूँ, अंदर सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो दैट इज डन बाय दिस ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया. नाउ इफ देयर इज अ डैमेज टू दिस ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया, जैसे मान लीजिए आप बहुत ही खुशी में एक्सीडेंट हो गया आपका, कभी कभी ब्रेन में ये मोटर एरिया को डैमेज हो जाता है तो आप बात नहीं कर सकते, म्यूट हो जाते. सेकंड लोब आता है पैराइटल लोब. सेकंड लोब इज अ पैराइटल लोब. सो व्हाट इज द रोल? जनरल सेंसरी एरिया इज देयर इन दिस पैराइटल लोब. जनरल सेंसरी एरिया ऑफ फीलिंग, आल्सो इंटरसेप्ट क्यूटेनियस एंड कॉन्शियस मसल सेंस. मसल में जैसे जर्क होता है, मसल में पेन होता है, ये सब है ना. टेस्ट एरियाज आर देयर इन पैराइटल लोब. टेस्ट एरिया एक्सटेंड इनटू टेम्पोरल लोब, है ना. सेंस ऑफ टेस्ट स्पीच, है ना, एरिया दैट इज प्रेजेंट इन द पैराइटल लोब, ओके, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ पैराइटल लोब. देन नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब. सो इन द टेम्पोरल लोब यू हैव ऑडिटरी एरियाज. क्वेश्चन आता सकता है आपको और आई थिंक आ चुके हैं. सो ऑडिटरी एरिया इज प्रेजेंट इन द व्हिच लोब ऑफ सेरेब्रम? सो ऑडिटरी एरिया इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, है ना. जैसे यहाँ पे क्या है ना, स्पीच एरिया कहाँ पे? पैराइटल लोब में है. मोटर स्पीच एरिया कहाँ पे? फ्रंटल लोब में है. ऐसा क्वेश्चन आता है आपको. टेम्पोरल लोब में आता है आपका ऑडिटरी एरिया फॉर हियरिंग एंड इंटरप्रिटेशन. देन ऑल्फैक्टरी एरिया फॉर स्मेल. स्पीच एरिया फॉर थॉट बिफोर स्पीच, जो मैं थिंक कर रहा हूँ क्या बोलना है वो कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में होता है. सो ऑल्फैक्टरी एरिया मतलब एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल. आप जो स्मेल कर लेते हो ना, अच्छा स्मेल आया फ्लावर का या फिर गंदा स्मेल आया आपका आपके नाले का, वो कैसे समझता है आपको? दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय टेम्पोरल लोब. दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय टेम्पोरल लोब. ऑडिटरी एरिया, हियरिंग एरिया एंड स्मेल एरिया दैट इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब. ठीक है. तो मोटर स्पीच एरिया कहाँ पे होता है? फ्रंटल लोब में. देन सेंसरी एरिया फॉर मसल्स फीलिंग इन पैराइटल लोब, है ना. सेंस ऑफ टेस्ट स्पीच इन अ पैराइटल लोब, ओके. देन ऑडिटरी एरिया, olfactory area, speech area for thoughts before speech. Thoughts before, that is in a temporal lobe. Now next one is the occipital lobe. Occipital lobe में क्या है? यहाँ पे visual area for vision. Visual area for vision. Remember, visual area is there for vision and interpretation of vision, है ना. And also special relationship area is also there. तो occipital lobe. Then next area है आपका association area. तो again abstract of thinking, reasoning, learning, memory, personality of individual. So that is present in the association area. तो जो think करते हो आप, जो thinking power है, reasoning का capacity आपका, learning है ना, memory, personality आपका जो है वो किसके ऊपर है? association area. right? न्यूरल प्लास्टिसिटी क्या होता है? न्यूरल प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट द adaptation of changes that needed, that is adaptation of changes in a brain, that is a neural plasticity. Now in the association area, hippocampi for the memories are also responsible. Hippocampi formation for memory is very very important. ये खाता है. मेमोरी कहाँ पे है? मेमोरी इज रिलेटेड विद द association area of your cerebrum. तो आपका जो सेरेब्रम होता है उसमें ही मेमोरी. देखो जिसको एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में जैसे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उसका शॉक लग गया,
तो उसका सेरेब्रम जो एरिया है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है एंड वो उसकी याददाश्त चली जाती है ना, उसकी याददाश्त चली जाती है तो फिर भोला बिसरा। आपने देखा होगा ना, आपकी बॉलीवुड मूवीज में तो ये फेमस है ना, एक्सीडेंट हो गया, उसके सर के ऊपर मार लग गया, उसके सर के ऊपर मार दिया किसी ने, उसका मेमोरी चला गया और फिर से लाने के लिए सर के ऊपर मारना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है, वो मूवीज में गलत दिखाते हैं, जैसे अगर मारेंगे तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इफ एनी देर इज अ ट्रॉमा टू द सेरेब्रम दैट में रिजल्ट इन द, है ना, वो जो जो एरिया आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, जो जो एरिया को डैमेज हो जाए, जैसे फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब अगर सेरेब्रम का डैमेज हुआ है तो वहाँ पे मोटा स्पीच एरिया लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टेम्पोरल लोब को अफेक्ट हो गया तो उसको समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, बहरा हो जाएगा वो, ठीक है। ऑल फैक्ट्री मतलब वो स्मेल नहीं कर पाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्ट ऑन ब्रेन, so that area will be damaged and that result in the loss of that sense, okay. So then there is a next is the basal ganglia of your brain. So basal ganglia so gray matter within the cerebral hemisphere, so responsible for the regulation of movement and muscle tone, so regulation of movements and muscle tone, basal ganglia, regulation of मूवमेंट एंड मसल टोन। जो पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस बेसल गैंग्लिया में ही अफेक्ट होता है। So these are the different parts of your brain. Right? Now in the peripheral nervous system you have nerves. In the peripheral nervous system you have nerves. 12 pairs of cranial nerve and 31 pairs of thoracic nerve. 31 pairs of thoracic nerve. तो thoracic nerve आप देखना है तो देख सकते हो बुक में से। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको। सो व्हाट इज अ 10th क्रेनियल नर्व, व्हाट इज अ 5th क्रेनियल नर्व, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। या फिर मैच द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व विद देयर रिस्पेक्टिव नेम, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। दैट्स व्हाई आई हैव लिस्टेड दिस। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व मतलब क्या है? द नर्व व्हिच अरेंजेस और व्हिच द ओरिजिन ऑफ दिस नर्व इज फ्रॉम क्रेनियम। तो आपकी खोपड़ी से आएंगे क्रेनियल नर्व। फर्स्ट वन इज नोन एज ऑल फैक्टरी नर्व। ऑल फैक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। आप जो स्मेल लेते हो, अच्छा है ना, प्लेजेंट स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है, फ्लावर अगर है तो प्लीजेंट स्मेल आएगा, है ना। अगर सड़ा हुआ एग है तो उसका फाउल स्मेल आएगा। सो ऑल फैक्टरी नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। देन ऑप्टिक नर्व, एज द नेम इंडिकेट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। तो सेंस ऑफ साइट, साइट का सेंस मतलब जो दिखता है आपको आंखों से, सेंस ऑफ साइट इज बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, सो इट इज अ सेंसरी नर्व। ऑल फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, बोथ आर द सेंसरी नर्व, है ना। अगेन ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। आप अगर आंख बंद करके चलोगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे आपकी बॉडी में। तो इफ यू ट्राई टू वॉक बाय क्लोजिंग द आइज, you will not able to balance yourself in a unknown area. known area में आप कर सकते हो। तो orientation of head is also done by this optic nerve, right? Next is a oculomotor nerve. oculomotor nerve, oculo मतलब क्या? eyes, है ना, and motor मतलब क्या? motor मतलब related to the skeletal muscle. तो oculomotor मतलब क्या? muscle of eyes, है ना। आपको ब्राइट लाइट लग गया, आपके ऊपर ब्राइट लाइट फोकस किया आइज के ऊपर, तो आपका आइज में क्या होता है? मायोसिस होता है। डीम लाइट हो गया तो माइड्रेसिस होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोटर मसल्स। तो मसल सप्लाइड टू आइज, रेटिना एंड पिलोमोटर मसल, सिलियरी मसल। तो मसल ऑफ सिलियरी, मसल ऑफ आइज लाइक सिलियरी मसल एंड सर्कुलर मसल, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स विल एडजस्ट द लेंस। आपका जो लेंस है वो एडजस्ट होगा। कभी कभी आपका लेंस साइज कम होता है, कभी कभी बड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। दैट इज oculomotor nerve. Now cranial nerve number 4 known as a trochlear nerve. So it is a motor nerve in the nature, a motor nerve. पहला olfactory nerve, optic nerve क्या है? sensory. Then oculomotor and trochlear nerve, they are motor. So it is a superior oblique muscle of eyes, supplied to superior oblique muscle of eyes. Then trigeminal nerve, cranial nerve number 5, trigeminal nerve, very very important. So it is a mixed nerve, sensory भी है, motor भी है, that's why it is a mixed nerve.
इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व दैट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व and motor, okay, related with the sensory and motor function like transmission of impulse of pain, temperature, touch, movement of mastication। तो देखो ये नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, सो देयर इज वन डिसीज नोन एज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। एक डिसीज होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, आजकल है फेमस है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। मतलब ये डिसीज थोड़ा सा रिच पीपल में होता है ना, जैसे इलाइट पीपल जो है, जैसे एक्ट्रेस हो गए, एक्ट्रेस हो गए या फिर कोई सेलिब्रिटी हो गया है, तो उसमें ये डिसीज फेमस है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व लीड्स टू ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ठीक है, तो देखो ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स ऑफ पेन। तो ट्राइजेमिनल नर्व का काम है, इट विल ट्रांसमिट द इम्पल्स और सेंस ऑफ पेन। जो पेन अगर हो रहा है तो वो ट्रांसमिट करेगा। अभी देखो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है? देयर इज नथिंग इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में कहीं पे लगा नहीं है, कहीं पे जख्म नहीं है, कहीं पे स्वेलिंग नहीं है, कहीं पे ट्रॉमा नहीं है, बट स्टिल योर बॉडी इज पेनिंग, है ना। मतलब आप कहीं गिरे नहीं हो, आपको कुछ हुआ नहीं है, बट सिर्फ पेन हो रहा है। आपको क्यों हो रहा है मालूम नहीं, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइजेमिनल इंटेंस पेन होता है, बहुत ही इंटेंस पेन, नोन एज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। एंड उसमें आपके जो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है जैसे कार्बामेज़ेपिन, वैल्प्रोइक एसिड, वो ड्रग यूज करते हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व का इन्फ्लेमेशन, so inflammation of trigeminal nerve is a trigeminal neuralgia. There is intense feeling of pain without reason, there is no trigeminal neuralgia. Now बहुत सारे पेशेंट में आजकल हो रहा है। okay? Now next is known as a abducens nerve, abducens nerve. So it is a motor nerve. Abducens nerve is a motor nerve. Abducens nerve is a motor nerve which supply to the lateral rectus muscle of eyeball. Lateral rectus muscle of your eyeball, causing abduction. Abduction is a kind of movement. Adduction, abduction. मतलब देखो है ना, मेरा ये हाथ है, ये मूवमेंट जो है फ्लेक्शन है ना, मूविंग टूवर्ड्स द, है ना, टूवर्ड्स दिस इज अ मूवर्स डूइंग द अपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये जो है ना, ये क्या है? अबडक्शन है ना, ये है अडक्शन, ये है अबडक्शन, ये है अडक्शन। सो नेक्स्ट वन इज अ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व मतलब अगेन इट इज अ मिक्स नर्व, सेंसरी प्लस मोटर। सेंसरी स्टिमुलस फॉर द टंग, टेस्ट बड एंड मोटर मूवमेंट ऑफ टंग। तो फेशियल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व, सेंसरी प्लस मोटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलस ऑफ टेस्ट, है ना, टेस्ट बड। जो आपको टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट, साल्टी टेस्ट एंड सोर टेस्ट, तीन ही टेस्ट होता है, स्वीट, सॉल्टी एंड सोर टेस्ट। दैट इज बिकॉज ऑफ द फेशियल नर्व। एंड मोटर मूवमेंट ऑफ योर टंग, आपका जो जीभ है उसका मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय फेशियल नर्व। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस नर्व और डैमेज ऑफ दिस नर्व, अगर ये नर्व डैमेज हो गया ना, इसका अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, डैमेज हो गया है, तो देयर इज वन डिसीज नोन एज अ बेल्स पल्सी। बेल्स पल्सी मतलब क्या? उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। बेल्स पल्सी मतलब क्या? फेशियल पैरालिसिस, आप बोलते हैं उसको फेशियल पैरालिसिस। बेल पल्सी होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन और बिकॉज ऑफ द ट्रामा ऑफ डैमेज टू फेशियल नर्व। बेल्स पल्सी या फिर उसको आप बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस, उसको मुंह टेढ़ा होता है, एक साइड पे होता है। ठीक, तो देन नेक्स्ट इज अ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। नेक्स्ट इज अ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। नेक्स्ट वन इज अ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। क्रेनियल नर्व में आता है नेक्स्ट वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। फेशियल नर्व कितना है? 7th क्रेनियल नर्व दैट इज अ फेशियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व इज अ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द 8th क्रेनियल नर्व? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी area. Okay, it is a sensory nerve consist of a vestibular and cochlear nerve. दो नर्व है, वेस्टिबुलो मतलब वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लियर मतलब कॉक्लियर नर्व। देयर इज अ टू नर्व्स, द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो associated with the functions of maintenance of posture and balance as well as hearing। तो जो है ना, क्रेनियल नर्व आपका
cranial nerve number 8 known as a vestibulocochlear nerve. Actually, it is a pair of vestibular nerve and cochlear nerve. So responsible for the hearing, auditory, and damage to the vestibulocochlear nerve is done by a lot of antibiotics. A lot of drugs will damage the 8th cranial nerve. 8th cranial nerve causes the deafness. अगर इसका compression होगा या फिर डैमेज होगा तो आपको क्या होगा, डीपनेस आ जाएगा, डीपनेस, आप बहरे हो जाओगे, डीपनेस. Damage to this 8th cranial nerve is done by a lot of drugs, right? The drug causing the deafness, right? जैसे आपका ये है कौन सा, लुब्डर्टिक फ्यूरोसेमाइड है ना, 8th cranial nerve को डैमेज करता है. Then 9th cranial nerve is a glossopharyngeal nerve. 9th nerve is a glossopharyngeal nerve. It is a mixed kind of nerve, sensory plus motor दोनों होता है. Stimulate the muscle of tongue, pharynx and secretory cells of parotid gland. मतलब आपके इसमें सलाइवा जनरेट करने के लिए, सलाइवा कब आता है आपको, बाय स्टिमुलेशन ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व. तो मिक्स स्टिमुलेट द मसल ऑफ टंग, pharynx and secrete the saliva from parotid gland. Parotid gland क्या है, parotid gland is a type of salivary gland. ठीक है. नेक्स्ट है cranial nerve number 10. Cranial nerve number 10. Cranial nerve number 10 known as a vagus nerve. Vagus nerve is also known as a largest cholinergic nerve. Vagus nerve क्या है, largest cholinergic nerve, acetylcholine contain, and it is supplied to your GIT area. सबसे बड़ा नर्व होता है GIT में कौन सा, this vagus nerve. It is a mixed nerve, sensory plus motor, and all gastrointestinal tract is innervated. मतलब ये supplied होता है. GIT is supplied with the, or GIT is innervated with the vagus nerve. Very very important nerve. It is an important part of your cholinergic system. Then 11th cranial nerve, accessory nerve. 11th cranial nerve, accessory nerve. It is a motor in nature, supplied to the sternocleidomastoid and trapezius muscle, pharyngeal and laryngeal muscles of neck. 12th cranial nerve is a hypoglossal nerve. 12th cranial nerve is a hypoglossal nerve. It is a motor in nature and contribute the speech and swallowing. Swallowing और speech जो action है वो because of the hypoglossal nerve. So these are the different cranial nerves. Very very important question आ सकता है आपको. Question कैसे आ सकता है आपको? What is the 5th cranial nerve? What is the 10th cranial nerve? What is the 8th cranial nerve? और match the following cranial nerve with their respective name. मतलब एक कॉलम में देंगे आपको cranial nerve A, cranial nerve 1, 5, 8, ऐसा है ना, 10. You have to find out their names. और आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग cranial nerve with their respective sense. तो जैसे ये स्मेल, ये क्या है हुआ, लाइक दिस, पेन, लाइक दिस. नाउ हाउ यू विल गेट अ सेंस, आपको सेंस आता कैसे है, ठीक है, हाउ यू विल गेट अ सेंस, तो नॉन एज द रिसेप्टर्स, है ना. तो यूर स्किन है ना, ये जो स्किन है आपका, your skin has a network of nerve endings. Your skin has a nerve ending, sensory nerve ending. Their nerve endings are the sensitive for the touch, pressure, temperature, cold, touch, temperature, pressure, cold. Is there any inflammation? अगर कुछ inflammation damage हो गया तो यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, तो दे आर आल्सो सेंसिटिव फॉर देम. पेन सेंसेशन आता है आपको. दिस सेंसरी नर्व एंडिंग रिकॉग्नाइजेस द सेंस लाइक कोल्ड, प्रेशर. आपको कुछ ने चूटी काट लिया, चिमटी काट लिया, तो आपको समझ में आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट इन द स्किन, ऑल ओवर द स्किन, इन द डर्मिस एरिया, and that carries the sensation to the
spinal cord and then brain, right? Spinal cord and brain. So in interoreceptor बॉडी के अंदर है ना. So there are two type of interoreceptor, visceroreceptor and proprioreceptor है ना. So visceroreceptor, जैसे stretch receptor is present in the heart. Receptor is present in the heart. So stretch receptor is present in the heart. जैसे आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा तकलीफ होता है, आपका मायोकार्डियम स्ट्रेच होता है, there is a release of some arterial natriuretic peptide. Baroreceptor, they are also a kind of receptor responsible for the measurement of blood pressure, regulation of blood pressure. So they are also stretch receptor present in the aorta. Aorta क्या है? Blood vessel. Chemoreceptors are also present in the GI tract. Osmoreceptors are present in the urinary tract to maintain the osmotic balance, है ना. So these are known as a visceroreceptor. ये सब visceral organs में आता है, that's why visceroreceptor. Proprioreceptor, है ना. ये जो अपन ने देखा है ये एक्सटर्नल रिसेप्टर है, मतलब बॉडी में एक्सटर्नल रिसेप्टर, एक्सटर्नोरेसेप्टर और एक्सटर्नल रिसेप्टर. इंटेरोरेसेप्टर मतलब बॉडी के अंदर कितने हैं. तो प्रोप्रियोरेसेप्टर है ना. मसल स्पिंडल में आता है रिसेप्टर, मसल स्पिंडल रिसेप्टर मसल में होता है. गोल्गी टेंडन ऑर्गन टेंडन में होता है. फिर पैसिनियन कॉर्पसल होता है आपका लिगामेंट में. फ्री नर्व एंडिंग जो है हेयर सेल में रिसेप्टर होता है, वेस्टिबुलर कटस रिसेप्टर, दैट विल गिव सिग्नल टू ब्रेन. देन एक्सटेरो रिसेप्टर, देखो एक्सटेरो रिसेप्टर, इंटेरो रिसेप्टर एंड एक्सटेरो. इंटेरो रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी विल सिग्नल टू ए ब्रेन. इंटेरो रिसेप्टर जो है बॉडी के अंदर होता है, उसमें विजरो रिसेप्टर भी आता है, प्रोप्रियो रिसेप्टर भी आता है. तो बॉडी के अंदर में जैसे मान लीजिए ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो कीमो रिसेप्टर्स विल सेंड अ सिग्नल टू ब्रेन. ब्रेन में सिग्नल करेगा, जैसे आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, सो इफ योर ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज, तो क्या होगा कि फटक से आपकी कीमो रिसेप्टर्स ना आपका बॉडी का एक्टिवेट होकर ब्रेन को मैसेज करेगा ना कि वॉल्यूम कम हो गया है. तो ब्रेन क्या करेगा, किडनी को बोलेगा चल किडनी तू क्या कर एंटी डायबिटिक हार्मोन प्रोड्यूस कर. तो एंटी डायबिटिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा है ना, जैसे हाइपोथैलेमस में एडीएच प्रोड्यूस होता है ना, दैट विल प्रोड्यूस एडीएच एंड एडीएच विल डू सोडियम वाटर रिटेंशन, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा वाटर का. वॉल्यूम बढ़ जाएगा वाटर का तो आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा लाइक दैट. तो इंटेरो रिसेप्टर एंड एक्सटेरो रिसेप्टर. एक्सटेरो रिसेप्टर मतलब आउटसाइड द बॉडी, एक्सटेरो रिसेप्टर आउटसाइड द बॉडी. तो इसमें देयर आर थ्री टाइप्स, क्यूटेनियस रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर्स एंड टेलेरो रिसेप्टर्स. क्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस रिसेप्टर दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में होता है. तो रिसेप्टर फॉर टच नोन एज अ मेसनर कॉर्पसल और मार्केल डिस्क. मेसनर कॉर्पसल एंड मार्केल डिस्क. अभी ये यहाँ पे एक चार्ट है, इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार फार्मासिस्ट एग्जाम में, डीआई के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. तो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच सेंसेशन नोन एज अ मेसनर्स कॉर्पस्कल, मेसनर्स कॉर्पस्कल एंड मार्केल डिस्क रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच रिसेप्टर, है ना. पैसिनियन कॉर्पसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर सेंसेशन, है ना. आपको प्रेशर फील होता है, आपको अगर किसी ने आपका हाथ के ऊपर प्रेशर डाल दिया, दैट इज प्रेशर इज फेल्ट बाय पैसिनियन कॉर्पसल, दैट इज नोन एज द प्रेशर रिसेप्टर. कोल्ड, अगर आपको बर्फ का गोला डाल दिया आपकी बॉडी के अंदर, है ना, शर्ट के अंदर बर्फ का गोला डाल दिया तो आपको कोल्ड फील होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द क्राउज एंड बल्ब. क्राउज एंड बल्ब इट इज अ काइंड ऑफ नर्व एंडिंग स्पेशल सेंस फॉर कोल्ड, है ना. गर्म सेंसेशन, वार्म सेंसेशन इज बिकॉज ऑफ द Ruffini end organ. Okay. Then pain sensation is because of the free nerve ending, pressing of free nerve ending, known as the nocip receptor. Pain sensation is because of the free nerve ending, known as the noxious receptor or noci receptor. कीमो रिसेप्टर में क्या आएगा, कीमो रिसेप्टर
So responsible for the taste. So taste buds are there on a tongue. Olfactory receptor are responsible for the smell. Teleroreceptor responsible for the vision and hearing. Vision के लिए कौन सा है? So retina, in the retina your rod cells and cone cells are responsible for the bright region and color vision. The cone cells are responsible for the bright light and rod cells are responsible for color vision. Hearing, ear cells in the organ of QWERTY in the ear, they are known as externoreceptor. कभी कभी एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मेसनस कार्पुसल्स और मार्केल्डिस, और इसके ऊपर भी आ चुका है रूफिनी ऑर्गन. Now you know that peripheral nervous system is consisting of two type of nerves. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो टाइप के नर्व होते हैं. एक तो होता है आपका है ना वॉलेंटरी नर्व और नोन एज सोमेटिक नर्व. सो इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यू हैव टू टाइप ऑफ नर्व्स. फर्स्ट वन इज अ सोमेटिक नर्व व्हिच इज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल एंड सेकंड वन इज अ ऑटोनॉमिक नर्व व्हिच इज अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल. है ना, मैंने अगर आपको पूछा कि आपका हाथ ऊपर करो तो आप इजीली हाथ ऊपर कर सकते हो. क्यों? Because it is under voluntary control, so it is a somatic nerve, somatic nervous control or somatic nerve, right? Now मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपका हार्ट रुकवा दो, okay, stop your heartbeat for 10 minutes, can you stop? No, because it is under involuntary control. So involuntary control means it is under the you know it is under the autonomic control. ठीक है, so somatic and autonomic nerve. So autonomic nervous system again they are classified into two types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ठीक है, तो autonomic nerve, okay, autonomic nervous system section of your peripheral nerve system. peripheral nerve में दो आता है, somatic nerve, autonomic nerve. तो autonomic nerve में दो आता है, sympathetic nerve, parasympathetic nerve, right? तो sympathetic nervous system prepares you for either fight or flight. Parasympathetic nervous system prepares you for energy conservation. तो देखो, मान लीजिए आप जंगल में हो, जंगल में आपके सामने आता है टाइगर. आपके सामने जंगल में टाइगर आ गया तो आपके पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है कि टाइगर के साथ में फाइट करो या फिर वहां से 9-2-11 हो जाओ, है ना. So if you see any kind of threat, so you have two choices, either you can face that situation or you can run away from that situation. So sympathetic nervous system prepares you for either fight or flight. Parasympathetic nervous system prepares you for energy conservation. So these two systems work in a synchronous manner, in a opposite manner. ठीक है, so इनके actions भी opposite है. जैसे for example, if you see a tiger in front of you, what will happen? सबसे पहले क्या होगा, आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा ना. So if you see any threat, your brain will recognize that threat and your sympathetic nervous system will be activated. What will it do? So it will increase the heart rate. Okay, so cardiac muscle के ऊपर क्या एक्शन रहेगा इनका? Increase the heart rate, because sympathetic nervous system it will release the adrenaline, noradrenaline. So neurotransmitter for sympathetic nervous system is nothing but the, or neurotransmitter for sympathetic nerve is nothing but the noradrenaline. So noradrenaline will be released. Noradrenaline will act on a cardiac muscle, will increase the heart rate. तो heart rate increase होगा आपका, right? Bronchial smooth muscle, मतलब आपको टाइगर के साथ में लड़ना है या फिर भागना है, दोनों कंडीशन के लिए. अगर आपको टाइगर के साथ में जंगल में लड़ना है या फिर भागना है, दोनों कंडीशन के लिए आपको मसल का एक्टिविटी करना पड़ेगा. भागने के लिए भी मसल लगता है ना, पैर के मसल. लड़ने के लिए भी उसको मुक्का मारना है, किक मारना है, मसल का काम होगा. तो उसके लिए क्या है कि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा. सो ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा तो इसलिए क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन. तो दैट्स व्हाई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल डायलेट योर ब्रोंकाई. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल डायलेट योर ब्रोंकाई, राइट. देन है ना, आपको टाइगर के साथ में लड़ना है या फिर वहां से भाग जाना है, दोनों कंडीशन के लिए क्या लगेगा आपको, विजन. आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए ना, है ना. नहीं तो मान लीजिए कि आप टाइगर के साथ में लड़ रहे हो, ओके, टाइगर पंजा मार रहा है राइट साइड से, आप देख रहे हो लेफ्ट साइड को, तो आपका कार्यक्रम हो जाएगा. मान लीजिए आप टाइगर से भाग रहे हो,
भागने के लिए भी विजन चाहिए ना, प्रॉपर विजन नहीं है आपका, दिख नहीं रहा है सामने, आप आंख बंद करके जंगल से भाग रहे हो, टाइगर आपके पीछे है और आप जंगल से भाग रहे हो आंख बंद करके, तो क्या होगा, टाइगर तो बाद में मारेगा आपको, पहले आप खुद ही पेड़ से टकरा के या फिर गड्ढे में गिर के मर जाओगे, है ना। So that's why whenever sympathetic nervous system is activated, so your cardiac muscle heart rate will increase, blood pressure will increase, bronchodilation will be there, your iris of muscle or your pupil will be dilated so that you can clearly see, है ना, आपको दिखना चाहिए, इसलिए क्या होगा, डायलेशन ऑफ पिपिल, डायलेशन ऑफ पिपिल। देन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवरी प्रोड्यूस करना, सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवरी प्रोड्यूस करना, है ना। सलाइवा कब लगता है, जब खाना खा रहे हो आप, तब लगता है, जब आप लड़ रहे हो टाइगर के सामने, वैसे आपका मुंह में क्या होगा, सब, है ना, आपके मुंह में सूखा पड़ेगा, देयर इज अ डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड, एंड आपके मुंह में क्या होगा, है ना, आपका मुंह सूख जाएगा जब आपके सामने थ्रेट है ना। सो डिक्रीज इन द सलाइवरी सिक्रेशन, डिक्रीज इन द सलाइवरी सिक्रेशन। स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, है ना, जब आप लड़ रहे हो तो आपको खाने का पीने का नहीं सोचेगा, है ना, डिक्रीज इन द पेरिस्टाल्सिस, तो नॉर एड्रेनालिन विल डिक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन, विल डिक्रीज द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, विल डिक्रीज द पेरिस्टाल्सिस, है ना। जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, स्टमक में जो ग्लैंड्स है वो कब एक्टिवेट होंगे, जब आप खाना खा रहे हो तब, अब यहाँ पे लड़ रहे हो तो ये सब क्या होगा, डिक्रीज इन द ग्लैंडुलर सिक्रेशन, है ना। इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ एनस और एनल स्फिंक्टर, जो आपका एनस है वहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जब आप लड़ रहे हो तो आप, है ना, जब आप लड़ रहे हो तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, है ना, टाइगर सर 2 मिनट टाइम प्लीज, थोड़ा सा सुबह सुबह मैं टॉयलेट नहीं गया था, तो 2 मिनट एक टॉयलेट करके आता हूँ, फिर से हम लड़ेंगे, सो नहीं बोल सकते आप, है ना। सो इंटरनल एनल स्फिंक्टर व्हाइल यू आर अंडर थ्रेट विल बी क्लोज्ड, विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, सो टू प्रिवेंट द डिफिकेशन, तो आप लड़ते समय आपको, है ना, लड़ते समय आपको 1 नंबर 2 नंबर का सेंस नहीं होगा, जब आप लड़ रहे हो भाग रहे हो उस टाइम पे, तो आपको ये सेंस नहीं होगा। सो इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ एनस विल बी क्लोज्ड, यूरिनरी ब्लैडर विल बी रिलैक्स्ड एंड स्फिंक्टर विल बी कंस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट द यूरिनेशन। तो आप उसको, टाइगर को ये नहीं बोल सकते, टाइगर साहब बहुत भाग लिया, 2 मिनट प्लीज, मैं थोड़ा सा 1 नंबर करके आता हूँ, नहीं चलेगा, ठीक है, टाइगर मार देगा आपको। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, so there is a suppression of your GIT, suppression of your glands, suppression of your defecation process, suppression of your digestion process, suppression of urination, right? Now internal sphincter urethral will be contracted, so यहाँ पे यूरिन आपको नहीं पास कर सकते, कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा गए आप, so पैंट में यूरिन निकल जाएगा आपका, है ना, राइट। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन एंड विसरा, तो स्किन के ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, राइट, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन, जैसे पिलोमोटर मसल है आपका हेयर का, तो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिलोमोटर मसल आपका हेयर क्या होगा, स्ट्रेट होगा, है ना, मतलब शिवरिंग हो जाएगा, डर जाओगे ना आप, डरने के बाद में क्या होगा, है ना, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल और स्केलेटल ब्लड वेसल, आपके स्केलेटल ब्लड वेसल का स्मूथ मसल जो है वो डायलेट हो जाएगा, देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल ब्लड वेसल, स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप फाइट कर रहे हो, आपके फाइट करने के लिए आपका मसल काम करना चाहिए ना, तो इफ यू आर फाइटिंग विद द टाइगर यूजिंग योर थाइज, यूजिंग योर हैंड्स, अगर आप उसको फाइट कर रहे हो तो आपके स्केलेटल ब्लड में, स्केलेटल मसल में ब्लड जाना चाहिए, ब्लड जाएगा तो तभी न्यूट्रिशन जाएगा, तभी ग्लूकोज जाएगा, तभी वर्कआउट कर सकते हैं, है ना। सो अगर स्केलेटल ब्लड वेसल डायलेट नहीं हुए तो वहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब क्या, कि आप भागना चाहते हो लेकिन आप भागने के लिए एनर्जी ही नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई डायलेशन। लीवर में क्या होगा, लीवर, इन द लीवर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन लगेगा, एनर्जी मिलेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज यूटिलाइज किया जाएगा, इन द पैंक्रियास ग्लूकागॉन सिक्रेशन विल बी देयर, इन द एड्रेनल ग्लैंड increase in the secretion of adrenaline and noradrenaline. So these are the sympathetic action. Sympathetic action है,
पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या है? पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस अपोजिट टू दिस, पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन अपोजिट टू दिस। मान लीजिए आप सिंगल में हो, टाइगर है, टाइगर दिखा, टाइगर दिखने के बाद में सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा और ये सब एक्शन सबको नजर आएंगे, ये सब एक्शन क्या होंगे? नजर आएंगे। मान लीजिए आप भाग के घर पे आ गए, टाइगर के साथ में लड़के टाइगर को मार के घर पे आ गए, या फिर टाइगर से भाग के घर पे आ गए। जैसे आप घर पे आते हो, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट हो जाएगा। देयर इज एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा? जो आप जंगल में हार्ट रेट बढ़ा था, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। हाँ? जो आपका पिपिल डायलेट हो गया था अच्छा रास्ता दिखने के लिए, वो अभी घर में हो तो नॉर्मल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिपिल टू द नॉर्मल, है ना? सलाइवरी ग्लैंड, जब आप टाइगर्स के साथ लड़ रहे हो तो भाग रहे हो, तब आपका मुंह में सूखा पड़ गया था, मुंह सूख गया था, है ना? मुंह सूखा था, तो अभी क्या होगा? अभी घर पे आ गए, मम्मी ने अच्छे से उपमा बनाया है, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा ना। देयर इज अ इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो अभी क्या होगा? अभी खाना खाओगे, आपका जीआईटी एक्टिवेट हो जाएगा, देयर इज इंक्रीज इन द पेरिस्टाल्सिस, है ना? बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन, इसका न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन, इसका होता है नॉरएड्रेनालिन। नाउ ग्लैंड्स, आपने खाना खाया तो उसको पचाना पड़ेगा, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर डाइजेशन, है ना? नाउ क्या कि आपका जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा। घर पे आने के बाद में आपको समझ आया है सुबह से गया नहीं मैं टॉयलेट, आप जाओगे वहाँ पे डिफ्रिक्शन होगा, है ना? आपको यूरिन करने का सेंस होगा कहाँ पे? व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, तो यूरिन ओके, सो ब्लैडर विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, एंड स्फिंक्टर विल बी रिलैक्स्ड, sphincter will be relaxed to permit the urination, okay? Again, no effect on the blood vessel, effect blood vessel के ऊपर नहीं है। no effect on the smooth muscles of skeletal blood vessel, लीवर पे एक भी नो इफेक्ट है। पैंक्रियाज में क्या होगा? इंसुलिन सिक्रेशन होगा, क्यों? क्योंकि खाना खाएंगे ना आप, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे वर्क इन अ अपोजिट मैनर। तो यहाँ पे याद रखना है, देखो यहाँ पे भी अगेन, है ना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को? दिस इज नोन एज अ थोरैक, दिस वन इज नोन एज सर्वाइकल एरिया, सर्वाइकल, एंड दिस वन इज नोन एज सैक्रल, ओके, सैक्रल। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज अ सर्वाइक also known as thoracolumbar outflow, known as the thoracolumbar outflow, yes, it is also known as cervicolumbar outflow, cervical, sacral, sacral and cervical outflow, sacrum है। तो यहाँ से जो नर्व है, थोरेसिक मतलब जो सर्वाइकल एरिया है, वहां से नर्व्स निकलेंगे, सिंपैथेटिक नर्व। So all these nerves are the sympathetic nerve. Some nerves will also origin from the sacral area, sacrum जो होता है, या फिर आपका last part of your spinal cord, so that is also okay. Now what are the actions? So noradrenaline, what is the neurotransmitter for sympathetic nervous system? Noradrenaline, 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 noradrenaline will be released, it will cause to, sorry, this is known as a parasympathetic, sympathetic वाला ये है, yeah, this one is a sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? नॉरएड्रेनालिन। नर्व का न्यूरोट्रांसमीटर फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। So when you will see any threat, so your sympathetic nervous system will be activated,
and it is known as a thoracolumbar outflow. So it is known as a thoracolumbar outflow because lot of nerves from thoracic area will outcome and lumbar area also come. That's why sympathetic nervous system को अपन बोलते हैं thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. So what will happen? So after activation of sympathetic nervous system, your pupils will be dilated. Okay, because if you want to run, you should have good vision. So blood vessel, peripheral blood vessel will be constricted. Salivary gland will be inhibited. Secretions are inhibited. Mucous secretion is also inhibited. Skeletal blood vessels will be dilated. Vasodilation. Heart rate and force of contraction will be increased. Blood pressure will be increased. है ना? जो आपका ब्रोंका है, bronchodilation will be there. Then there is a suppression of peristalsis, reduction of peristalsis. है ना? Liver में glycogen will be broken down, glycogen lysis. Spleen and adrenal medulla, there will be contraction of spleen, release of noradrenaline from adrenal medulla. अपन देखा है, there is inhibition of urine secretion, urine passing. Bladder क्या होगा? Bladder muscle will be relaxed, sphincter will be contracted, है ना? Vasoconstriction of urine, है ना? Constriction of blood vessel in the gonadal organs. तो sympathetic nervous system का ये actions है. तो now parasympathetic action का क्या है? So parasympathetic nervous system is also known as a cervicosacral outflow. Cervicosacral outflow because cervical area जो है वहाँ से नर्व आएंगे and कुछ sacral area से आएंगे. Cervicosacral outflow. Thoracolumbar outflow is known as a sympathetic nervous system and this one is a parasympathetic. तो यहाँ पे एसिटिलकोलिन रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहेगा? एसिटिलकोलिन, ACH. So what will happen? So pupil will be constricted in opposite action to the sympathetic nervous system. यहाँ पे decrease in the heart rate, heart rate जो बड़ा था वो कम हो जाएगा, यहाँ पे salivary secretion हो जाएगा, all glandular secretion, है ना? Adrenaline क्या करता है? Noradrenaline will increase the bronchodilation. तो ये क्या करेगा? Bronchoconstriction, है ना? Secretion of gastric and peristalsis will be increased. यहाँ पे आप यूरिन का सेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिफेक्शन सेंस होगा, इजोकुलेशन होगा मेल्स में, यूरिन फॉर्मेशन विल बी इंक्रीज्ड इन द किडनी, ब्लड वेसल, है ना, ऑफ डाइजेस्टिव एरिया विल बी नेक्स्ट. So opposite action. So these actions we are going to see again when we will see the drug acting on ANS. जब अपन देखेंगे sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, वहाँ पे भी अपन ये पूरा देखने वाले हैं. Just for introduction to you. Just for introduction to you. Okay? So these are now disorders of brain. Last part of today's lecture, disorders of brain. Brain के disorders क्या है? Disorders of brain और diseases of the brain. Very important question इसके ऊपर आ चुके हैं. Very important question आ चुका है. Disorders of brain. क्या क्या disorders हो सकते हैं आपको? अगर आप, है ना, increased intracranial pressure. पहला क्या है? Increased intracranial pressure. खोपड़ी में प्रेशर बढ़ रहा है. वैसे तो आपकी खोपड़ी में प्रेशर हरदम बढ़ता है. क्यों? सर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, बढ़ गया प्रेशर खोपड़ी में. बट इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज ड्यू टू द आइदर इंक्रीज्ड CSF वॉल्यूम. अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम कब बढ़ सकता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का? एक तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया या फिर उसका फ्लो कम हो गया. सो इंक्रीज इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वॉल्यूम. इट मे बी ड्यू टू द सेरेब्रल इडिमा, है ना, सेरेब्रल इडिमा के कारण हो सकता है, या फिर हीमोरेज, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, हीमोरेज और हेमाटोमा, ट्यूमर्स ऑफ ब्रेन. इंक्रीज इन द cerebrospinal fluid volume and it causes the pressure, it will increase the pressure on your brain that leads to vomiting, slurring of speech, vomiting, है ना, मेमोरी नहीं रहता है आपको, आपके आईज कस्ट होंगे. तो इंक्रीज द इंटरक्रैनियल प्रेशर, आप क्या होगे? बाद में अनकॉन्शियस हो जाओगे, बाद में आप कोमा में जा सकते.
So intracranial pressure is increased because of the increase in the volume of CSF or blockage of the flow of CSF. It may be due to the either edema, hemorrhage, hematoma or brain tumor. ठीक है. सेकंड कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रोसेफेलस मतलब क्या है? Abnormal increase in the high CSF, abnormal increase in the volume of CSF because of the obstruction to the flow, है ना. तो उसको बोलने हाइड्रोसेफेलस. नेक्स्ट आता है सेरेब्रल हाइपोक्सिया. सेरेब्रल हाइपोक्सिया मतलब आपके ब्रेन में ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, राइट. सो ब्लड प्रेशर लेस देन 60 mm of Hg. Blood pressure less than 60 mm of Hg, mercury millimeter. So if there is a less blood pressure than 60 mm of Hg to the brain, that leads to hypoxia. So because of the condition affecting the cerebral blood vessel, cerebrum में जो आपका blood vessel है उसका कोई disease है, so affect blood vessel, that leads to hypoxic state. आपके brain को ऑक्सीजन कम मिलेगा, and that's why okay, hypoxic state more than 2 minutes. अगर आपको hypoxia है more than 2 minutes, अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिला, तो ब्रेन सेल will start dying. So if the condition hypoxia persists for more than 2 minutes in the brain, so you will suffer from degeneration of neuron. So it will affect the neurological cells ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ सेरेब्रल आर्टरी और आर्टेरियल स्टेनोसिस. ये क्यों हो सकता है? एक तो ऑक्सीजन ही नहीं है, या फिर आपका जो सेरेब्रल आर्टरी है, आपका जो सेरेब्रल आर्टरी है, ब्रेन में जो आर्टरी आता है उसका क्या हो गया? ऑक्लूजन हो गया. ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ सेरेब्रल आर्टरी मतलब अगर इसमें कोई क्लॉट हो गया, व्हाट विल हैपन? हाइपोक्सिया टू द ब्रेन ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ सेरेब्रल आर्टरी और आर्टेरियल स्टेनोसिस. ये अगर आर्टरी बंद हो गए तो हाइपोक्सिया में कॉज द कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट. आपका हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है हाइपोक्सिया के कारण. सडन सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा. दैट हाइपोक्सिया ऑकर्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. आल्सो इन अ ड्रग पॉइजनिंग में भी होता है हाइपोक्सिक, है ना. मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस. मेनिंजाइटिस मतलब क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ योर स्किन, इन्फेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ योर ब्रेन. जो मेनिंजिस होता है, इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजिस ऑफ ब्रेन ड्यू टू बैक्टीरिया, है ना. बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया ब्रेन को, मेनिंजाइटिस होता है. ओके, तो इन्फेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ ब्रेन बाय बैक्टीरिया और एनी अदर, है ना. जैसे आपका टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस. टीबी अगर जिसको टीबी का इन्फेक्शन अगर ब्रेन में गया उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, है ना. इसे ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोन फॉर द मेनिंजाइटिस. जैसे 2 to 5 years की एज का जो बच्चा है, 2 to 5 years एज चिल्ड्रंस, दे आर मोर प्रोन टू हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मेनिंजाइटिस 30 years के एज में हो सकता है आपको. नेसेसिरिया मेनिंजाइटिस 5 to 30 years. नेसेरी गोनोरिया का जो बैक्टीरिया है उसका मेनिंजाइटिस. नाउ एन्सेफेलाइटिस मीन्स व्हाट? वायरल इन्फेक्शन ऑफ योर ब्रेन. वायरल इन्फेक्शन टू द ब्रेन नोन एज अ एन्सेफेलाइटिस. इन्फेक्शन टू द ब्रेन, इन्फेक्शन टू द मेनिंजेस द लेयर्स ऑफ ब्रेन, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस. इन्फेक्शन टू द ब्रेन नोन एज एन्सेफेलाइटिस, मे बी आइदर बैक्टीरियल और वायरल. तो है ना, जो ब्रेन को इन्फेक्शन अगर हो गया बैक्टीरिया का या फिर वायरस का, दैट इज नोन एज एन्सेफेलाइटिस. तो अगर बैक्टीरिया का है तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियल एन्सेफेलाइटिस. अगर वायरस का है तो वायरल एन्सेफेलाइटिस, जो मुझे हुआ था. आई वाज हैविंग वायरल एन्सेफेलाइटिस. तो मेनिंजाइटिस मतलब क्या है? इन्फेक्शन टू द लेयर्स ऑफ
ब्रेन ना, जैसे ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड मैटर, पीएम मैटर, इन्फेक्शन टू दैट मैटर्स इज नोन एज मेनिंजाइटिस। सो देखो यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रॉमा हो गया, अगर आपको किसी ने दिमाग में, ब्रेन में मार दिया, खोपड़ी में मार दिया, तो देर विल बी रिलीज ऑफ ब्लड, देर इज अ ब्लीडिंग नोन एज अ, है ना, है ना, देर इज अ ब्लीडिंग नोन एज हिमेटोमा। अगर ब्लीडिंग हो गया तो हिमेटोमा बोलते हैं उसके। जैसे यहाँ पे ब्लीडिंग हो गया, सो इन द इपिड्यूरल स्पेस ऑफ योर ब्रेन नोन एज इपिड्यूरल सबड्यूरल हिमेटोमा, सबड्यूरल हिमेटोमा। सब एराकोनॉइड हिमोरेज मतलब क्या, अगर आपको ब्लीडिंग हो गया ब्रेन में सब एराकोनॉइड स्पेस में, लाइक दिस, है ना, आपको ये सीटी स्कैन में ऐसा आएगा, इट इज नोन एज अ सब एराकोनॉइड हिमोरेज। और अगर ट्यूमर है आपके ब्रेन में, ट्यूमर और इंट्रा सेरेब्रल हिमोरेज, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या फिर ब्लीडिंग हो गया ब्रेन के अंदर, इट विल लुक लाइक दिस, इट इज नोन एज इंट्रा, है ना, सेरेब्रल हिमोरेज और सेरेब्रल ट्यूमर। ओके, नाउ स्ट्रोक क्यों होता है? स्ट्रोक, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रोक? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी और ब्लड वेसल इन द ब्रेन, है ना, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी और ब्लड वेसल इन द ब्रेन, सो दैट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ वन साइड। क्यों? इसे मान लीजिए ना, ये क्या है आपका ना, एक आपका एक हेमिस्फीयर है, एक क्या है आपका, एक हेमिस्फीयर है। ये जो ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल इधर भी जा रहा है, ये एक ब्लड वेसल इधर जा रहा है। तो अगर ये ब्लड वेसल आपका ब्लॉक हो गया, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज इन दिस ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो ये इफ देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ दिस राइट सेरेब्रल आर्टरी, तो देयर विल बी नो ब्लड सप्लाई टू द राइट सेरेब्रम, तो ये एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो दिस एरिया विल स्टार्ट डाइंग। एंड अगर ये एरिया डाई हो गया, मतलब इफ न्यूरॉन्स ऑफ दिस राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डाइज, है ना, सो राइट हेमिस्फीयर विल कंट्रोल योर मोटर एक्टिविटीज ऑफ लेफ्ट बॉडी। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट बॉडी के मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इट विल कंट्रोल योर लेफ्ट मोटर एक्टिविटी। लेफ्ट मोटर एक्टिविटी मतलब क्या, लेफ्ट साइड जो है आपके बॉडी का वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ योर हेमिस्फीयर, राइट साइड कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है राइट साइड को। so if there is a blockage to the right cerebral hemisphere, so your left side of your body will be paralyzed, है ना। it is also known as a hemiparesis, है ना, हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया और हेमीपैरेसिस। क्यों बोलते हैं हेमीपैरेसिस? सो स्ट्रोक और पैरालिसिस को ही अपन हेमीपैरेसिस बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लॉकेज ब्लड वेसल क्यों होता है? इट मे बी ड्यू टू accumulation of cholesterol, it may be due to coagulation of blood, it may be due to, है ना, it may be due to coagulation of blood, it may be due to arteriosclerosis, है ना, because of the blockage of blood vessel of the brain, paralysis of one side of body, that is known as a hemiparesis. It is the most common cause of death and disability in the older patient. जो है ना, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा होता है पैरालिसिस, most common cause for disability and death. Factors involving in this are nothing but the cardiovascular disease. अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन है बहुत समय से, हाइपरटेंशन, देन अर्थरोमा, डायबिटीज मेलाइटिस, सिगरेट स्मोकिंग, दीज आर द रीजंस फॉर स्ट्रोक। तो सिगरेट स्मोकिंग आजकल बहुत है। देखो आजकल क्या है कि अच्छे अच्छे हेल्दी, है ना, अभी कल ही मेरे को एक न्यूज़ आई है, मतलब मेरे एक दोस्त है, जूनियर दोस्त मलकापुर के, इनको भी स्ट्रोक हुआ है। और कल ही मुझे एक न्यूज़ आई कि जैसे वहाँ पे एक अकोला में एक कॉलेज है, तो वन ऑफ द स्टाफ मेंबर ऑफ अकोला में जो फार्मेसी कॉलेज है उसमें वन ऑफ द स्टाफ मेंबर ऑफ दैट कॉलेज इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस स्ट्रोक। सडनली स्ट्रोक हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बैड हैबिट्स, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, है ना, बैड ईटिंग हैबिट्स, है ना, या फिर एनी हीमोरेगोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ना, तो स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक मतलब क्या? पैरालिसिस, है ना, आपके सेरेब्रल की आर्टरी ब्लॉक हो गई, इधर भी एक क्या जा रहा है, आर्टरी जा रहा है, ये एरिया को ब्लड सप्लाई के लिए, एक आर्टरी इधर जा रहा है, ये एरिया को ब्लड सप्लाई के लिए। सपोज इफ देयर इज एनी ब्लॉकेज इन दिस आर्टरी, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, ये एरिया क्या होगा, मर जाएगा।
that causes the stroke. So right side of cerebrum will control your left side your body, left side of cerebrum will control the right side of your body. तो राइट साइड का ब्लॉकेज है आपको सेरेब्रम में, तो आपको लेफ्ट साइड पैरालाइज होगा. मोस्ट कॉमन यही होता है, मोस्ट कॉमन पैरालिसिस होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बहुत ही कम पैरालिसिस होता है. तो लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन विल ब्लॉक सेल्डमली. अगर लेफ्ट साइड का ब्लॉक होता है तो राइट साइड पैरालाइज होगा. ठीक है. नाउ डिमेंशिया मीन्स व्हाट? डिमेंशिया इज नथिंग बट द caused by progressive irreversible degeneration of cerebral cortex resulting in the mental deterioration usually over several years. डिमेंशिया मतलब क्या है ना, कि उसको याद में रहना, मेमोरी नहीं है पूरा, है ना, मेमोरी चला जाता है उस पेशेंट का. डिमेंशिया मोस्टली occurs in the elderly patient. Then next one is Alzheimer disease. Alzheimer's disease. तो एक मूवी आया था, देखो यहाँ पे, there was one movie known as Uri the surgical strike, ना मूवी आया था आपका, बॉलीवुड मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ना. So in that the Bollywood actor was a Vicky Kaushal and his mother was suffering from this Alzheimer disease. Alzheimer disease क्या होता है? Usually it affect the elder people over the 60 years of age and there is a degeneration of cholinergic neuron. क्वेश्चन एज इट आ चुके हैं 2-3 बार. इन अल्जाइमर डिसीज देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन. मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिटिल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा. सो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन विल नॉट बी देयर ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन. सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ एट्रोफी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड लीड्स टू डिटोरिएशन ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, है ना. और यहाँ पे डिमेंशिया भी होता है. डिमेंशिया इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिसीज, कॉमनली फाउंड इन द पीपल विद द डाउन सिंड्रोम. जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको अल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा है. दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम दे हैव ग्रेटर चांसेस टू हैव अल्जाइमर्स, है ना. वो विकी कौशल बोलता है उसको, माँ को अल्जाइमर्स है 3rd स्टेज, तो सब कुछ भूलने लगी है, कहीं मुझे ना भूल जाए, इससे पहले मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, है ना. वो बोलता है उसके सुपीरियर ऑफिसर को. तो उरी के इसमें जो माता जी है विकी कौशल की, उनको अल्जाइमर्स होता है. अल्जाइमर्स मतलब क्या है? इन दिस देयर इज अ लॉस ऑफ मेमोरी. सो डीजनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और डीजनरेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ एसिटिल कोलिन. यहाँ पे ये 2 चीजें याद रखो, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. नेक्स्ट इज नथिंग बट द विल सी नेक्स्ट. देखो वही एक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कौन सा, स्ट्रोक का. सो रीजंस फॉर स्ट्रोक, ये क्या है आपका पूरा, ये जो एरिया है ब्रेन है, ठीक है. देखो ब्रेन को सप्लाई करने वाला आर्टरी है, तो आर्टरी सप्लाइंग टू ब्लड टू द ब्रेन. जैसे मान लीजिए ब्रांच है आर्टरी का, ये ब्रांच है और ये यहाँ पे सब ब्रांच है. अगर यहाँ पे अगर कोई क्लॉट हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया, नोन एज अ माइक्रो एन्यूरिज्म, तो ये जो एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया. ठीक है, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया. तो यहाँ पे ब्लॉक है तो ब्लड यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये एरिया क्या होगा, यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या होंगे, डेथ होंगे और आपका स्पीच चला जाएगा, है ना, स्पीच चला जाएगा. जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये आर्टरी ब्लॉक है, तो ये एरिया किसका है, एरिया है मोटर कंट्रोल का, है ना, मोटर कंट्रोल. अगर यहाँ पे ब्लड नहीं गया तो ये एरिया मर जाएगा, न्यूरॉन्स मर जाएंगे, एंड दैट लीड्स टू पैरालिसिस. Now subarachnoid hemorrhage, bleeding in the subarachnoid area of your brain, subarachnoid space of your brain skull, known as a hemorrhage, right? Next is nothing but the Huntington's disease. Next disease of brain, Huntington's disease. Now it is usually affecting to the 30 and 50 years of age. 30 के बाद में ये डिसीज हो जाएगा हंटिंगटन डिसीज. इसके ऊपर GPAT 24 में क्वेश्चन आ चुका है. GPAT 24 जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें.
So Huntington disease is usually affect over 30 or 50 years. It is a genetic disease. It is an inherited disease. Inherited disease. Inherited is an inherited disease associated with the deficiency of GABA, not BABA. GABA मतलब क्या? Gamma aminobutyric acid. GABA is gamma aminobutyric acid. What is that? It is an inhibitory neurotransmitter in the brain. Inhibitory neurotransmitter in the brain, GABA, not BABA. तो हंटिंगटन डिसीज क्वेश्चन आ चुका है. और सेकेंडरी डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू वेस्कुलर डिमेंशिया, आल्सो नोन एज अ मल्टी इम्पैक्ट डिमेंशिया बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज. टॉक्सिक डिमेंशिया इज बिकॉज ऑफ द अल्कोहल एंड सॉल्वेंट मिसयूज. ज़्यादा बेवड़े वाले जो लोग हैं उसमें भी डिमेंशिया होता है. तो अगर ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, देसी पंटर होते हैं, देसी पंटर में क्या होता है? टॉक्सिक डिमेंशिया. टॉक्सिक डिमेंशिया इज बिकॉज ऑफ द अल्कोहल एंड सॉल्वेंट मिसयूज और आल्सो बिकॉज ऑफ द विटामिन बी डिफिशियंसी. विटामिन बी का डिफिशियंसी हो गया, अल्कोहल ज़्यादा लेता है, सॉल्वेंट का मिसयूज करता है, डिमेंशिया हो जाएगा, मतलब भूल जाएगा वो. डिमेंशिया. पार्किंसन डिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. तो पार्किंसन डिसीज, पार्किंसोनिज्म और पार्किंसन डिसीज ये भी ओल्ड एज में ही होता है. प्रोग्रेसिव एंड ग्रेजुअल डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन. तो डोपामाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है. डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन जो है उसका डीजनरेशन मतलब लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, लॉस ऑफ डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन, loss of dopaminergic neuron. So there is a deficiency of dopamine and that leads to bradykinesia, muscular tremors, pin rolling movements of fingers, speech problem, posture problem, muscle twitching, physical disability which is a progressive but there is no mental disability. मतलब ये भी क्या है? 60 एज के बाद में मोस्ट कॉमनली होता है ये पार्किंसन डिसीज. सो इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर. डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है. व्हाट आर द न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर? तो जिसमें न्यूरॉन का लॉस होता है. न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर मतलब क्या? डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, लॉस ऑफ न्यूरॉन. तो इन केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज एसिटिलकोलिन न्यूरॉन वाज डीजनरेटेड, cholinergic neurons was degenerated, but in case of Parkinson disease, dopaminergic neurons. इसके ऊपर क्वेश्चन 2-4 बार आ चुका है. Loss of dopamine containing neuron, loss of dopaminergic neuron leads to Parkinson disease. Okay, ये सिम्टम्स क्या है? ब्रैडीकाइनेशिया, मसल ट्रिमर्स, पिन रोलिंग मूवमेंट्स, मतलब है ना, मतलब ट्रिमर ऑटोमेटिकली उसका हाथ शेक करेगा. सो इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लिम्स. ओके, सो स्पीच प्रॉब्लम, पोस्चर उसका ऐसा टिल्टेड रहेगा, मसल ट्विचिंग, फिजिकल डिसेबिलिटी, प्रॉपर्टी चलेगा नहीं, नोन एज अ पार्किंसन डिसीज. ओके, देन अगेन पोलियोमाइलिटिस इज आल्सो ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो पोलियो वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया आपको, दैट इज नोन एज अ पोलियोमाइलिटिस. सो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ पोलियो वायरस और ऑकेजनली एंटेरो वायरस विच कॉजेज द मसल पैरालिसिस. Death may occur because of the respiratory paralysis. Then multiple sclerosis. Next disease क्या है? Multiple sclerosis. तो यहाँ पे क्या होता है? There is a demyelination of neuron. Demyelination of neuron that leads to multiple sclerosis. तो myelin sheath होता है, वो उसका लॉस होता है न्यूरॉन का. तो myelin sheath of neuron is lost due to inflammation of nerve. So demyelination of neuron results in the multiple sclerosis and there is a deposition of white matter. There is a deposition of white matter and myelin sheath will be lost and deposition of white matter known as a plaque. White plaque will replace the myelin sheath. It is a demyelinating disease, usually develops in the age of 20 to 40 and there is a weakness of skeletal muscle, paralysis of skeletal muscle, loss of coordination movements and disturbance in the senses. मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. यू कैन सी द पार्किंसन पेशेंट. पार्किंसोनिज्म का पेशेंट कुछ ऐसा दिखता है ना.
देयर वाज अ वन मूवी इन अ बॉलीवुड, बॉलीवुड में एक 90s में एक मूवी आया था, उसका नाम था राजा। इन द बॉलीवुड देयर वाज ए मूवी नोन एज द राजा। एक बॉलीवुड मूवी है राजा नाम का, संजय कपूर इज अ लीड एक्ट्रेस, माधुरी दीक्षित इज अ लीड एक्ट्रेस, और उसमें एक परेश रावल का एक कैरेक्टर है। परेश रावल इज अ ब्रदर ऑफ संजय कपूर, है ना। एंड नाउ इन दैट मूवी परेश रावल वाज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसनिज्म। परेश रावल वाज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसनिज्म, है ना। अखिया मिलाओ कभी अखिया चुरो किया तूने किया जादू, वो गाना है देखो उसमें, है ना। बिना पायल की बजे घुंघरू। So Raja movie is there. So in that movie, Sanjay Kapoor was the lead actor, and his brother was a Paresh Rawal, and Paresh Rawal was suffering from this Parkinsonism. So what are the symptoms of Parkinsonism? Due to degeneration of dopamine containing neuron or dopaminergic neuron in the neurostriatal tract of your brain leads to Parkinsonism. So what is there? Stopped posture, मतलब झुक के चलेगा, आगे झुक के चलेगा पेशेंट। स्टॉप्ड पोस्चर, आगे झुक के चलेगा। लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब फेशियल मसल का एक्सप्रेशन चला जाएगा। देन मसल विल बी रिजिड, मसल रिजिड हो जाएगा, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, मसल्स रिजिड हो जाएगा, मसल रिजिड हो जाएगा। टिमलिंग ऑफ हेड एंड एक्सट्रीमिटीज, मतलब ऐसा ऐसा करते रहेगा। आपने देखा होगा बूढ़े लोग कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो दैट इज नॉट टिंगलिंग ऑफ हेड, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। स्लो स्टफिंग गेट, धीरे धीरे चलेगा, ऐसा एकदम धीरे धीरे चलेगा। जैसे आपने देखा रतन टाटा जी जो है उनका गेट देखो, रतन टाटा जी नाउअडेज उनका गेट देखो, उनका चलने का स्टाइल देखो। अभी जो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े होने के बाद में वो पार्किंसनिज्म भी है उनको, तो देखो उनका रतन टाटा जी का अगर कोई वीडियो देखा करंटली तो वो ऐसा ही दिखेगा आपको, ऐसा ही चलते हैं झुक के, और ऐसा स्टॉपर्ड पोस्चर है, known as a Parkinsonism. It is a Parkinsonism. ठीक है। I hope I am audible to you. अगर आपको साउंड आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। There are a lot of symptoms, tingling in the hands, legs, as well as siluria, seborrhea, ये सब है इसमें। It is a Parkinsonism, है ना। एक मूवी आया था राजा in the 90s. There was one movie known as a Raja. So in that one character was a Paresh Rawal. Paresh Rawal used to first of all happens to be elder brother of your lead actor known as Sanjay Kapoor. He was suffering from the Parkinson's. नेक्स्ट डिसीज इज नथिंग मतलब मोटार न्यूरॉन डिसीज, एक नंबर खतरनाक, ये भी बहुत खतरनाक डिसीज। नेक्स्ट वन इज अ मोटार न्यूरॉन डिसीज। मोटार न्यूरॉन डिसीज, मोटार न्यूरॉन डिसीज, motor neuron disease. So it is a progressive degeneration of upper and lower motor neuron in a man, usually occurs in after 50 years. 50 साल के बाद में मोटर न्यूरॉन डिसीज हो सकता है ना मेंस में। मोटर न्यूरॉन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम एंड पोन्स वेलुलाई इज अफेक्टेड। Degeneration of motor neuron, loss of motor neuron, and that's why there is no muscle strength, no muscle movement, no locomotion. Okay, there was the one scientist known as a, एक देखो एक साइंटिस्ट है, देखो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, स्टीफन हॉकिंग। क्या नाम है भाई? स्टीफन हॉकिंग। देयर वाज वन साइंटिस्ट नोन एज स्टीफन हॉकिंग। आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट है, ऐसा बैठा रहता है व्हीलचेयर के ऊपर, और वो उसके सामने क्या है, एक लैपटॉप का स्क्रीन रहता है, मतलब है ना। So Stephen Hawking was suffering from this motor neuron disease. Stephen Hawking was suffering from this motor neuron disease. Stephen Hawking. Then next is a Bell's palsy. Bell's palsy मतलब क्या? Also known as a facial palsy, and it is due to the compression of facial nerve. Facial nerve का अगर compression हो गया तो Bell's palsy होता है, मतलब मुंह टेढ़ा होना, एक साइड पे मुंह टेढ़ा होता है। ओके, सो फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी, इसको बोलते हैं बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस। तो compression of facial nerve in the temporal bone, it is because of the compression of facial nerve in the temporal bone that leads to facial paralysis or facial palsy.
Then next one is a Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome है ना, इसको बोलते हैं अपन GBS. क्या? GBS. Guillain-Barré syndrome when it is an inflammatory disease of your peripheral nerves. Guillain-Barré syndrome also known as acute inflammatory polyneuropathy. Sudden acute progressive bilateral ascending muscular, मतलब ये सडन एक्यूट प्रोग्रेसिव, ये GBS मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है नर्व्स का. बायलैटरल मतलब दोनों साइड के होगा, दोनों साइड्स. तो असेंडिंग मस्कुलर वीकनेस, पैरालिसिस बिगिनिंग टू द लिम्स है ना. पैरालिसिस आपके लोअर लिम्स से स्टार्ट होगा, बाद में आर्म्स तक जाएगा, टंग्स तक जाएगा, क्रेनियल नर्व का भी होगा. गुलियन-बार सिंड्रोम GBS, इसके भी बहुत सारे पेशेंट हैं आजकल. गुलियन-बार सिंड्रोम. स्पाइना बाइफिडा, इट इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर. बचपन से ही माल फॉर्मेशन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब है ना. स्पाइनल कॉर्ड आपका फॉल्टी बनेगा. एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस इज अननोन, बट लॉट ऑफ ड्रग्स आल्सो हैज एडवर्स इफेक्ट नोन एज स्पाइना बाइफिडा. तो टेराटोजेनिक ड्रग्स जो होते हैं वो स्पाइना बाइफिडा कर सकते हैं. लॉट ऑफ ड्रग्स आर हैविंग स्पाइना बाइफिडा एज एडवर्स इफेक्ट. इट इज आल्सो related with the deficiency of folic acid. अगर folic acid का deficiency है in the pregnant woman, that can leads to faulty neural tube spina bifida. Okay, so I hope you are getting these points. Next है ना, Alzheimer disease. इसमें होता है Alzheimer disease is a progressive disease that occurs into approximately 5 million people in the US. They are affected by Alzheimer's. And 1 lakh people, they used to die due to Alzheimer's in the US. 65 एज के बाद में ये आता है ना, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ दिस बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन. There is also one protein which destruct the cholinergic neuron. Beta amyloid protein होता है that will destruct the cholinergic neuron that leads to Alzheimer disease. It may be a genetic also. और एक नया डिसीज देखो, अपैसिया. नया क्या है? नया है यह अपैसिया, नया है यह. It is due to the damage to the speech area of cerebrum and may impair one or more aspect of the person's ability to use the language. अपैसिया मतलब क्या है? अपैसिया मतलब है ना, बात नहीं कर सकता. अपैसिया मतलब म्यूट. जैसे मान लीजिए ट्रॉमा टू द बॉक्कस एरिया लीड्स टू अपैसिया. So these are the different diseases of the brain, and this will end your chapter today. I hope everybody understood. And tomorrow we'll start drug acting on CNS. Tomorrow morning 11 AM drug acting on CNS. पहले देखेंगे अपन general anesthetics. Tomorrow drug acting on CNS. First we'll see general anesthetics, right, from pharmacology point of view. So I hope everybody understood this.